So, dear students, welcome to my channel. When you are constructing a sentence, there should be a subject first, and it should be noun and pronoun. Second, verb comes, and after verb, if the verb takes an object, it is okay, and it can take a complement also. So, first subject, noun and pronoun, then comes the verb, and then object or complement. Now we have to decide that which verb takes object and which complement. Okay, so I'll make you understand. And then these four things, here I have written on the board, you can see subject, verb, object or complement. These are essential elements of making a sentence. Okay, and after that you can add up lots of phrases. It can be adjectival phrase, it can be prepositional phrase, it can be adverb phrases, and it can be clauses also. So what I was saying that first, when you are constructing a sentence, these basic four things are needed to be there in the sentence. And then you can make a long sentences by adding. These are called adverb or adjunct. Okay, so these things make your sentence long. So you can add up long sentences by adding adverb or adjunct. But first, these four things are very essential for to be there in the sentences. So मैं एक बार फिर बता दूं कि कोई भी सेंटेंस जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, अभी आपको डिसाइड करना है कौन से वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और कौन से वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा. एक्चुअली ये पोजीशन होती है, पर्टिकुलर वर्ब अपने साथ कभी ऑब्जेक्ट लेता है और कभी कॉम्प्लीमेंट लेता है. सो यू कैन नॉट से that this verb takes object and this verb takes complement. It depends on the construction of the sentences, that how it is working in a sentence. A particular word works in a sentence. Okay, so first let's talk about subject. Okay, पहले हम subject के बारे में बात करते हैं. तो आपको पता है कि किसी भी sentence में, in any sentence, subject always start with a noun or a pronoun. Just keep in mind. Okay, so noun and pronoun. Then come the position of a verb. Verb is very essential to be there in the sentence. Without verb, you cannot construct any sentence. If you are constructing even a small sentence, there should be a verb. Like if you say stop, go, run. These are sentences in itself, because these are imperative sentences where actually what we do that we hide the subject. So what I was telling you, subject, then verb, then object, then complement. Okay, now let's talk about subject first. So subject, it can be noun and pronoun. From noun or pronoun you can construct a sentence. Okay, so if I say Tom sleeps. Okay, so here I have written Tom, and here I am writing sleeps. So we see that to construct a sentence you need to have a subject and a verb. तो यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से जो है हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस बन जा रहा है. टॉम सोता है. ओके, टॉम स्लीप्स, टॉम ईट्स, टॉम लाफ्स, टॉम ड्रिंक्स, कुछ भी. तो जब हमारा सेंटेंस वर्ब से पूरा हो जाता है, वी डोंट नीड टू हैव एनी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन इट. ओके, तो जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों हो, है ना. कभी कभी हमारा सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से पूरा हो जाता है. ओके, सो इफ आई राइट टॉम स्लीप्स, टॉम सोता है. ओके, तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है. ओके, सो समटाइम व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं कि एडवर्ब को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं. टॉम स्लीप्स साउंडली और टॉम स्लीप्स कंफर्टेबली. तो ये जो कंफर्टेबली या साउंडली वर्ड है ये एडवर्ब है. ये हम सेंटेंस के अंत में लाते हैं और एडवर्ब का काम होता है किसी भी वर्ब की विशेषता बताना.
Okay, so what I was saying that sometimes we are able to construct a sentence by the use of subject and verb only. If I say the child weeps, okay, or Tom laughs, or Tom sleeps. So here we don't need to add ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस. हमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से जो है हमारा काम चल जाता है. बट ऑब्जेक्ट हम कब लेते हैं सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट हम उस समय लेते हैं व्हेन सब्जेक्ट डज सम वर्क एंड इफेक्ट ऑफ दैट वर्क फॉल्स ऑन समथिंग. जब आपका सब्जेक्ट कोई काम करता है और उस काम का प्रभाव किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे अगर हमने कहा टॉम प्लेज फुटबॉल, ठीक है, टॉम सब्जेक्ट, टॉम ने काम किया खेलने का और खेलने का प्रभाव पड़ा फुटबॉल पर. टॉम प्लेज फुटबॉल. राम इज ईटिंग अ मैंगो. So Ram is subject, is eating, he's doing some work that is of eating and the effect of that work falls on the mango. तो ये हो गया ऑब्जेक्ट. तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट जब कोई काम करता है और उस काम का प्रभाव जब किसी चीज पर पड़ता है तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? What is a compliment? You know, most of the students they are very confused about the uses of कॉम्प्लीमेंट. दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे टॉम स्लीप्स, तो यहाँ पे द सेंटेंस इज करेक्ट. ओके, वी डोंट नीड टू एड एनीथिंग एल्स लाइक कॉम्प्लीमेंट. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ आई राइट टॉम इज, ओके, वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, व्हाट एल्स? अगर मैं कहती हूं भाई सब्जेक्ट और वर्ब से हमारा जो है मीनिंग पूरा हो जा रहा था. मैंने कहा टॉम स्लीप्स, टॉम सोता है, लेकिन कुछ सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा भी एक वर्ड जोड़ने की जरूरत पड़ती है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. अब मैंने कहा टॉम इज, टॉम है, व्हाट? वी नीड अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. मैंने लिखा टॉम इज अ टीचर. ओके, सो इफ आई राइट टॉम इज अ टीचर, नाउ इट हैज बिकम अ होल सेंटेंस. अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया और टीचर हमारा कॉम्प्लीमेंट बन गया. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अच्छा, नाउ you will think that what is the basic differences, what are the basic differences between the subject, object and complement. So let me tell you one thing. Whenever you are adding an object, you need to keep in mind that the doer or the subject is doing some work and the effect of that work is falling on something or someone. It's called object. जब आपका डूअर कोई काम करता है और उसका प्रभाव किसी पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है. कॉम्प्लीमेंट हम उसे कहते हैं जब हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमें एक और शब्द की जरूरत पड़ती है उसको पूरा करने के लिए. समझ में आ रहा है? इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है. डूअर इज नॉट डूइंग एनी वर्क हियर. वी आर जस्ट कंप्लीटिंग द सेंटेंस. So if I write, I'm giving you another example so that you can understand it well. So if I write, अगर मैं लिखती हूं यहां पे Tom seems, so I have written here Tom seems, Tom ऐसा प्रतीत होता है, what? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है. स्टिल द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. सो व्हाट वी नीड टू ऐड टॉम सीम्स हैप्पी. तो यहाँ पे क्या हो गया? हैप्पी हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. और ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर मैं सेंटेंस में टॉम को लेके एक सेंटेंस लिखती हूं कि टॉम रोट अ लेटर. ओके, Tom wrote a letter. Here we see that Tom has done a work and the effect of that work is falling on a letter. So it is an object, okay? And happy is here complement. I hope you have understood the basic difference between object and complement. So कोई भी sentence, whenever you are forming a sentence, you need to keep in mind कि कोई भी sentence शुरू होता है subject से.
सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है. इट इज वेरी एसेंशियल द वर्ब टू बी देयर. एंड वर्ब के बिना आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होता. आपका प्रेडिकेट जो तैयार होता है वो वर्ब से ही होता है. एक वर्ब होता है और उसके बाद कभी ऑब्जेक्ट आता है. जब सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उस एक्शन का प्रभाव किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा. और अगर आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो उसको पूरा करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, मैं आपको एक आध और एग्जांपल बता दे रही हूँ उसको रब करने के बाद, सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स दिस एडवर्ब और एडजंक्ट. अब क्या है कि नाउ यू कैन मेक योर सेंटेंस वेरी लेंदी. जब हम इस एडवर्ब को जोड़ते, देखो जैसे मैंने यहां पे अभी जोड़ा था टॉम स्लीप्स साउंडली और टॉम स्लीप्स पीसफुली या टॉम स्लीप्स कंफर्टेबली. तो यहां पे मैंने एडवर्ब जोड़ के सेंटेंस को बड़ा कर दिया. ठीक है, बेसिक हमारा जो सेंटेंस है उसमें आपका सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ या कॉम्प्लीमेंट हुआ. दिस मच इज नीडेड. बाकी आप पीसफुली, ब्यूटिफुली, कंफर्टेबली ये आप ऐड कर रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि टॉम कैसे सोया. अंडरस्टैंड. और भी सेंटेंस को हम लेंदी बना सकते हैं. वी कैन मेक आवर सेंटेंस ऑफ अ लॉन्ग पेज. एक लंबा पेज का सब्जेक्ट हमारा बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है. उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके हम सेंटेंस को लेंदी बना सकते हैं. लाइक क्लॉजेस ऐड कर सकते हैं, फ्रेजेस आप ऐड कर सकते हैं. उसके बाद आपका फ्रेजेस मैंने बताया कि जो फ्रेज क्या होता है इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं आपको. पहले थोड़ा सा हम जान ले कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट में एक आध डिफरेंस और जान ले. देन विल टॉक टू क्लॉज एंड फ्रेज. मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को और भी ज्यादा लंबा किया जा सकता है, तो कैसे हम इस पर बात करते हैं. Now we see that we have taken subject complement and object complement. Okay, subject complement means the information we are getting more about the subject. So Tom is, if I don't write anything else, only Tom is. अगर मैं लिखती हूँ Tom is तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है. इसमें Tom कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हम Tom की स्थिति बता रहे हैं कि Tom is. जब तक ना राइटर जोड़े तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. सो इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बिकॉज राइटर इज टॉम, टॉम इज राइटर. तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हियर टॉम इज डूइंग एन एक्शन. टॉम मेड, टॉम ने बनाया, टॉम ने काम किया. टॉम मेड रानी, किसे बनाया? रानी. क्या बनाया? द इंचार्ज. सो अगर मैं यहाँ पे यहां तक छोड़ दीजिए. नाउ कम अप टू हियर. टॉम मेड रानी. टॉम हैज डन एन एक्शन और उस एक्शन का प्रभाव पड़ा रानी पर, तो रानी ऑब्जेक्ट हो गया. लेकिन स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द राइट मीनिंग, होल मीनिंग यू कैन से. टॉम मेड रानी, टॉम ने रानी को बनाया. अब हमारा अब भी पूरा नहीं हो रहा है. इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने पर भी हमारा मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है जब तक ना हम द इंचार्ज इसमें जोड़े. सो टॉम मेड रानी द इंचार्ज. अब यहाँ पे जो इंचार्ज है ये कॉम्प्लीमेंट है. किसके बारे में बात हो रही है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी इस ऑब्जेक्ट के बारे में. ऑब्जेक्ट कौन है? टॉम ने एक काम किया, टॉम ने बनाया. किसे बनाया? रानी को. रानी यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने में द इंचार्ज हेल्प कर रहा है, यानी टॉम मेड रानी द इंचार्ज. ओके, नाउ दीज टू सेंटेंसेस कैन बी मेड लॉन्ग. अभी ये जो सेंटेंस है बेसिक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ वी कैन extend these two sentences by adding more word into it. अभी यहाँ पे मैंने लिखा टॉम इज अ राइटर. ओके, सो व्हाट विल डू दैट इस नाउन के पहले लेट अस ऐड सम एडजेक्टिव. टॉम इज अ, वी कैन से टॉम इज एन अमेजिंग राइटर. मैंने लिखा टॉम इज एन अमेजिंग राइटर.
So what I did that I have added one quality of Tom. ठीक है, इस राइटर के बारे में लिखा कि टॉम इज एन अमेजिंग राइटर. यू कैन गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर एडजेक्टिव्स इनटू इट. सो यू कैन से Tom is an extraordinary writer. Tom is an amazing, nice, sensible writer. Whatever adjective comes into your mind, you can go on adding it to make it long. आप कोई भी एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं. ठीक है. सो अब यहाँ पे आइए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में. टॉम मेड रानी द इंचार्ज. ओके, सो टॉम मेड रानी द इंचार्ज. यहां तक तो ठीक है. टॉम ने काम किया. क्या काम किया? बनाया. किसे? रानी को. क्या? द इंचार्ज. नाउ द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो वी कैन मेक दिस, एक्सटेंड दिस सेंटेंस लॉन्ग बाय एडिंग मोर वर्ड्स इनटू इट. टॉम मेड रानी द इंचार्ज ऑफ द स्टोर. ये मैंने क्या किया? ये कुछ वर्ड है ऑफ द स्टोर जब मैंने जोड़ा तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड prepositional phrase. इसको मैंने फ्रेज लगा के लंबा कर दिया. सो टॉम मेड रानी द इंचार्ज ऑफ द स्टोर. सो रिमेंबर, हमारा बेसिक होता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. अब इसी को हम एक्सटेंड करके कुछ जो भी हमारे मन में आए हम उसको और लंबा बना सकते हैं. I'm giving you an example so that it becomes clear to you. Okay, before that we need to know what is a phrase and clause, because it is sometime it create problems for you to understand what is a phrase and clause. Once you understand it, it become clear to you. You can make your sentence long by adding more and more clauses and phrases, to look it more beautiful here. Now you can see I have written a long sentence. Okay, so sentence is such a long, but the important things to know about this sentence is that there has to be a subject, a verb, an object, or sometime a complement. These four basic elements are needed to make a sentence. Rest of the things are not necessary to add up, but you can add to give more meaning to the sentence. And the things which we are adding, it is called adjunct. An adjunct can be prepared by the use of phrases. These can be adjectival phrases, adverbial phrases, or sometimes subordinate clauses we can add to make the sentence long. Okay, so here we see Tom killed a bird with a catapult in the evening at the garden with his friend because he is a naughty boy. Okay, now let's see. Let's analyze this sentence. Tom killed a bird with a catapult in the evening at the garden with his friend because he is a naughty boy. So this is the whole sentence. First we need to find out that here Tom killed. So we have subject, verb, and then we have an object. Okay. So Tom has done a Tom has done a work of killing. Tom ने मारा. किसे मारा? एक वर्ड को. तो यहाँ पे टॉम डूअर है. टॉम ने एक काम किया मारने का, उस काम पर असर पड़ा बर्ड पर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. टॉम किल्ड अ बर्ड. यहां तक तो हमारा जो है पूरा मेन एलिमेंट है. उसके बाद विद अ कैटरपिल्ट, किससे मारा? विद अ कैटरपिल्ट, गुलेल से मारा. इन द इवनिंग, कब मारा? इन द इवनिंग. एट द गार्डन, गार्डन में मारा. विद हिज फ्रेंड. यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा with a catapult in the evening at the garden with his friend. यहां तक हमारे सारे phrases हम जोड़ रहे हैं इसको बड़ा करने के लिए, और सारे हमारे prepositional phrases हैं, और कोई कोई हमारा adverb phrase भी है. we'll talk about it. अब यहां से देखिए, because he is a naughty boy, because he is a naughty boy, we are adding more, giving more information about the दिस पर्सन टॉम. अब ये बिकॉज क्या हो गया? ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है और ये पूरा का पूरा एक सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है. ठीक है, इसको कहते हैं सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज, जो कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है. तो इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया.
तो हमारा सेंटेंस बन गया टॉम किल्ड अ बर्ड विद अ कैटरपिल्ट इन द इवनिंग एट द गार्डन विद हिज फ्रेंड बिकॉज ही इज अ नॉटी बॉय. ओके, सो ये लंबा सेंटेंस बन गया, बट द बेसिक थिंग्स की एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में मेन एलिमेंट है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. बट वी कैन increase it, we can extend it by adding more and more things into it. Okay, now I'm going to give you another example. अब यहाँ पे देखो हम एक सेंटेंस और भी लिखते हैं. It takes much time to rub the thing and then write again, so that's why I pause the video and do it. Okay, so I'm writing in front of you so that you can understand. So here I'm writing Tom invited. Okay, so Tom invited, Tom subject, invited verb. Okay, Tom has done a work. Tom ने काम किया यहाँ पे subject. Tom invited Rani. अब ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, दे शुड बी एन ऑब्जेक्ट, यू नो, क्योंकि टॉम ने एक काम किया इनवाइट करने का और काम का इफेक्ट पड़ा रानी पर. तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. Tom invited Rani. This is the basic thing, basic sentence. Okay, now we can add more and more phrases and clauses to make it a lengthy sentence. अब इसमें बहुत लंबा हम कर सकते हैं. Tom invited Rani in the evening at the party या एट द रेस्टोरेंट भी कर सकती थी मैं. सो टॉम इन्वाइटेड रानी इन द इवनिंग एट द पार्टी विच he held in his house. Okay, so what we did, that Tom invited Rani. Till here it's very clear, we know the subject and object, the sentence elements are there. Then we have added in the evening at the party which which he held in his house. So यहां से यहां तक मैंने एक क्लॉज जोड़ा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ to make it a lengthy sentence. Okay, so we'll know more about noun clauses, adjective clauses, adverb clauses, what is a phrase, what is a clause. So you have to every day you watch my video, I'll be uploading videos to let you know. We'll talk about the grammar only. Grammar actually है क्या, basic things है क्या. We need to know so many things that we'll discuss in my classroom. And please subscribe and like my video, and I'll be coming with lots of information about grammatical things. Most of the things we'll discuss about that, how the sentence is constructed. Okay, thank you so much.